Good morning, students. You can see these objects residing on my table. Why? Because I'm gonna explain the topics related to these objects only today. So our topics will be somewhere around these objects. Okay? So are you ready for that? All right. So students, the topics are knitting, synthetic fibers, and history of clothing materials. Today we will be discussing about the knitting process, synthetic fibers, and history of clothing materials. Students, in the previous session we have studied about the weaving process, already discussed, but now in this session we will going to learn the knitting process. So students, as you can see, these objects, this woolen socks is been made out of wool with the help of these two needles. All right, these objects are called needles. You might have seen doing your mama with this kind of needles, making this kind of clothes, woolen sweater or woolen socks or and muffler, etc. So students, about knitting, I would like to tell few things to you that it is mainly done on the wool. ये सिर्फ ऊन के ही फाइबर्स पर किया जाता है. क्या? Knitting process. Knitting is mainly done on the wools to make woolen fabrics. वूल के कपड़े बनाने के लिए. What is the meaning of fabric? कपड़े, like sweaters, mufflers and socks. Students, materials made from these woolen clothes, clothes made up of woolen materials are light and fluffy. हल्के और गद्देदार होते हैं. Which retains the body heat, जो कि बॉडी के हीट को रिटेन का मतलब होता है उसे रोकता है, अंदर थाम के रखता है, रिटेन. So students, as wool retains the body heat, that's why we wear them in winter seasons. क्योंकि जो वूल होता है वो हमारी बॉडी हीट को अंदर हमारी बॉडी में ही रोक के रखता है, इसलिए हम इन्हें विंटर सीजन्स में पहनते हैं. ओके student, as I told you that knitting can be done with the help of needles, you can see here, but only using needle by hand. It's a very laborious process and it takes so many days. So nowadays machines are being used for making the woolen product as well. मशीन्स का भी यूज़ किया जा रहा है आजकल के टाइम में वूलन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सो दैट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी मेड. ओके, सो होता क्या है कि हाथों से जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सिर्फ एक स्वेटर को बनाने के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ मशीन अ लार्ज नंबर ऑफ वूलन प्रोडक्ट कैन बी मेड. So students, now moving on towards our next topic, synthetic fibers. Synthetic fibers आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. You already been studied about terylene, nylon and acrylic. These are the examples of synthetic fibers. Okay, they are very special kind of plastic made from chemicals. ये जो examples आप देख पा रहे हैं, these are the plastics which are made up of chemicals. Okay, chemical से बनाए होते हैं ये. The refined plastic is heated. इन chemicals को हीट, मेल्ट और क्या किया जाता है, बहुत ही फाइन पोर्स, बहुत ही बारीक छेदों से गुजारा जाता है, पास्ड थ्रू वेरी फाइन पोर्स. ओके,
students, after passing the refined plastics, the refined chemicals from the fine pores, they become the thread like structure, they become the threads. ये जो प्लास्टिक जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली प्लास्टिक्स हैं, और इन्हीं प्लास्टिक को जब हीट किया जाता है तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट यानी कि पिघलने के बाद इनको एक बहुत ही, जैसे छन्नी होती है, सीव होता है, उस तरीके के बहुत ही फाइन पोर्स वाले सीव में से पास थ्रू किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वो धागों जैसे इमर्ज यानी कि धागों जैसे बनकर निकलते हैं, जिसे कि ठंडा और बाद में सॉलिडिफाई किया जाता है, यानी कि सख्त किया जाता है और कूल किया जाता है। स्टूडेंट्स, these threads you can see, I have made the thread like structures which are called synthetic fibers. Okay, so these synthetic fibers then further twisted together, weave together to make the synthetic fabrics, यानी कि सिंथेटिक के कपड़े बनाने के लिए इनको वूव किया जाता है, बुना जाता है। as you can see this cloth here, okay, this cloth here, can you see the texture of this cloth? This is synthetic, okay, and this cloth is made up of synthetic fibers. Okay, so students, let's discuss quickly the property about synthetic fibers, the properties of synthetic fibers. Students, these fibers don't allow air to pass through. इन फाइबर में से हवा नहीं गुजर पाती है, क्योंकि बहुत ही ये फाइन होते हैं, महीन होते हैं, और क्या किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। तो क्या प्लास्टिक में से हवा गुजर पाती है? टेल मी, नहीं ना। लाइकवाइज सिंथेटिक फाइबर भी स्पेशल तरीके के प्लास्टिक फाइबर से बने होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स, इसलिए उनमें हवा पास नहीं हो पाती। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि उनमें पोर्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो इनमें पसीना भी नहीं सोख पाता है। जैसे कि कॉटन क्लोथ्स में पसीना सूख जाता है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और स्वेट, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। दे ड्राई क्विकली, दे कैन ड्राई ईजिली, एंड they don't shrink and wrinkle. As you can see this cloth, whenever I wash this cloth, I need not to press this. अधिकतर मुझे इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। This kind of clothes are wrinkleless, okay, and ये shrink भी नहीं होते हैं, यानी कि सिकुड़ते भी नहीं हैं। जैसे कि कॉटन फाइबर सिकुड़ जाते हैं वॉश करने के बाद कभी कभी, these fibers do not shrink, सिकुड़ते नहीं हैं। Students, today I am going to share a kind of a story here to discuss this topic, history of clothing material. Students, in ancient time, प्राचीन समय में जो लोग थे वो अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे? How did they cover their bodies? With the bark or big leaves of trees. पहले के ज़माने में बहुत ही पुराने समय में, जब कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग क्या पहनते थे? क्या सोच सकते हैं आप? तब लोग प्लांट्स के बड़े पत्ते और उसके छाल, बार्क यानी कि पेड़ों के जो छिलके होते हैं, वो पहना करते थे, उसी से अपनी बॉडी कवर करते थे। देन आफ्टर दैट उन्होंने शुरू किया क्या? फसल उगाना, क्रॉप्स कल्टीवेट करना शुरू किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो क्रॉप्स जो उगाते थे, उनके जो ट्विग्स, घास फूस, जो लंबे रेशे होते हैं पौधों के, प्लांट्स के, उन्हीं से घास से और ट्विग्स से क्या बनाने लगे? वो बास्केट और मैट, टोकरियाँ और चटाइयाँ वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो भी बुन के बनाई जा सकती हैं, वो उन्हें बुनना शुरू
कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने धीरे धीरे जो जानवर होते हैं उन्होंने सोचा कि चलो जो इनके बाल होते हैं, जो वूल उनकी बॉडी पे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, उनको उन्होंने एज अ थ्रेड यूज़ किया उनके बालों को एनिमल्स के, और उन्होंने उसे ही बुनना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड वीविंग देयर हेयर्स। किसके हेयर्स? एनिमल्स के हेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अर्लियर सिविलाइजेशन जो सबसे पहले जो हमारे जो समाज बसा, उसमें हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स हियर, इंडिया एंड इजिप्ट। वी विल डिस्कस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट हियर। सो इन इंडिया, जो कि गंगा के किनारे जब जो सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ पर लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। बट इन द इजिप्ट, जो नाइल रिवर के किनारे सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ पे लोग कॉटन और फ्लैक्स के फैब्रिक्स पहनते थे। कॉटन एंड फ्लैक्स। फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि प्लांट से बनता है, और कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर होता है जो प्लांट से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अर्लियर पीपल डिड नॉट नो हाउ टू स्टिच। पहले के लोग सिलाई करना नहीं जानते थे। दे डोंट नो हाउ टू स्टिच, सो दे स्टार्टेड, एक्चुअली दे इन्वेंटेड द नीडल। ओके नीडल का इन्वेंशन हुआ। नीडल के इन्वेंशन के बाद उन्होंने स्टिच्ड कपड़े, यानी कि सिले हुए कपड़े, जैसे हम आज पहनते हैं सूट, फ्रॉक्स, पैंट, शर्ट, तो ये स्टिचिंग जो है आज इसी नीडल की बदौलत है। टुडेज़ clothing designs are based only because of this needle, are due to this needle। इसी नीडल की वजह से सुइंग मशीन्स बनाई गई। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स एंड लेटर इन्वेंटेड सुइंग मशीन। सुइंग मशीन बनाई गई जिसकी मदद से आज हम बहुत तरह तरह के कपड़े पहन पाते हैं। होता क्या था कि पहले ज़माने में लोग कपड़े सिलना तो जानते नहीं थे, तो दे वियर द लॉन्ग क्लोथ्स एंड जस्ट ड्रेप्ड देम अराउंड। लपेट लेते थे वो सिर्फ कपड़े। फिर जब नीडल का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने तरह तरह के कपड़े सिलने शुरू किए और उन्हें पहनना शुरू किया। बट नाउडेज़, आज भी लोग बाग क्या करते हैं, साड़ी, धोती और टर्बन, इस तरीके की अनस्टिच क्लोथ पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today, and we have ended this chapter till here. This chapter has been closed now. Thank you.